Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I will teach you about factorials. So factorials is very important to study permutation and combination and for binomial expansion as well, and in various other fields of mathematics. So first of all बेटा, factorial is just a symbol और फैक्टोरियल को हम किस सिंबल की हेल्प से डिनोट करते हैं बेटा? एक्सक्लेमेटरी मार्क का जो सिंबल है वही है फैक्टोरियल का सिंबल. सो एन फैक्टोरियल का क्या मीनिंग होता है? एन फैक्टोरियल मीन्स n multiplied by n minus 1 multiplied by n minus 2 multiplied by n minus 3 and so on. हम कंटिन्यू करते जाएंगे जब तक कि लास्ट में क्या ना आ जाए बेटा? मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 पे आके हम अपना मल्टीप्लिकेशन स्टॉप कर देंगे और हमें n फैक्टोरियल की वैल्यू मिल जाएगी. अब यहाँ पे n है क्या? ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना. n इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर. n क्या क्या वैल्यूज़ ले सकता है बेटा? n एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है. मीन्स n कैन बी 0, 1, 2, 3 and so on. n can be anything, any positive number or 0. So let's consider the example of 4 factorial. So keeping in mind this definition, इस definition को अगर हम ध्यान अपने रखें, so 4 factorial का क्या मीनिंग हो गया बेटा? 4 factorial is 4 into 3 into 2 into 1. हम 4 minus 1 is 3, 4 minus 2 is 2 एंड देन लास्ट में क्या आ जाएगा? 4 minus 3 is 1. और फिर उसके बाद हम आगे नहीं कंटिन्यू करेंगे ना, क्योंकि अब हमारा क्या आ गया? 1 आ गया. सो दिस इज़ 4 factorial. 4 3 is 12, 2 is 24. So this is the answer of 4 factorial. 4 factorial is equal to 24. Now simply do this one quickly. 6 factorial is equal to 6. See, n factorial is n. So 6 factorial is 6 into 6 minus 1, that is 5, into 6 minus 2, that is 4 and so on. Okay, so 6 factorial is equal to 720. It is simply equal to 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, and this is our answer, that is 720. Now you have understood the definition of n factorial. It is so simple now. It is simply n factorial means n multiplied by n minus 1 multiplied by n minus 2 and so on till 3 to 1, 3 into 2 into 1. So now can you write the value of n minus 1 factorial? What will be the value of n minus 1 factorial? First pause the video and try it on your own. Okay, so see, this is very simple. n minus 1 factorial will be n minus 1. फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा बेटा? n minus 1, बिकॉज n फैक्टोरियल में फर्स्ट टर्म क्या था? n फैक्टोरियल में फर्स्ट टर्म था n. सो n minus 1 फैक्टोरियल में फर्स्ट टर्म हो जाएगा n minus 1. फिर हम क्या करते हैं बेटा? देखिए, जो भी टर्म यहाँ पे होता है हम उसमें -1 करते जाते हैं ना. पहले -1 करते हैं, फिर -2 करते हैं. सो n minus 1 है, सो n minus 1 -1 करेंगे. सो n minus 1 will be n minus 2, isn't it? This is this. Just keep this definition in mind, isn't it? n in the end it is multiplied by 2 into 1. See, n factorial is n, then n minus 1. So n minus 1 factorial will be n minus 1, then the next term will be n minus 1, the same thing, n minus 1 minus 1, then the next term will be n minus 1, the same thing, n minus 1 minus 2, isn't it? N factorial is n multiplied by n minus 1 multiplied by n minus 2 multiplied by n minus 3. So यहाँ पे भी यही होगा ना. n minus 1 factorial will be n minus 1 will be the first term, then the next term will be n minus 1 minus 1, then the next term will be n minus 1 minus 2, isn't it? You can relate these two. So our final answer will be n minus 1. Minus 1 minus 1 is minus 2. N minus 2. Minus 1 minus 2 is minus 3. So n minus 3 and so on.
and at the end we will get multiplied by 3 into 2 into 1. So n minus 1 factorial is equal to beta n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 and so on till 3 into 2 into 1. So now just quickly see these two things and see, can we write in place of this term this value n minus 1 factorial? See, n minus 1, n minus 2, n minus 3 multiplied by 3 into 2 into 1. This is the value of n minus 1 factorial, isn't it? n minus 1 factorial की वैल्यू क्या है बेटा? यही तो वैल्यू है ना. सो हम n factorial की वैल्यू और क्या लिख सकते हैं? n factorial is also equal to n into n minus 1 factorial, isn't it? Beta, if you understood this concept, then believe me, you can solve any question of factorial. Okay. Now see बेटा, अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को 4 और 6 फैक्टोरियल के एग्जाम्पल्स में रिलेट करेंगे तो हमारे लिए और इजी हो जाएगा. देखिए बेटा, 4 फैक्टोरियल इज़ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. अब देखिए हम इसको और क्या लिख सकते हैं? 4 फैक्टोरियल को हम 4 फैक्टोरियल को देखिए ये भी तो लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, बिकॉज 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना. सो 4 फैक्टोरियल कैन ऑल्सो बी रिटन एज 4 इंटू 3 फैक्टोरियल. और हम 4 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं? 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, बिकॉज 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1. इसी तरह से देखिए 6 फैक्टोरियल को हम और किस किस वे में लिख सकते हैं, आप खुद भी ट्राई करिए, है ना. सी 6 फैक्टोरियल क्या है? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. सो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं? 6 इंटू 5 फैक्टोरियल भी तो लिख सकते हैं, बिकॉज 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? सिंपली 5 फैक्टोरियल विल बी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना. सो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, या फिर और भी बहुत तरीके से लिख सकते हैं. देखिए इसको 6 इंटू 5 इंटू यहाँ से फैक्टोरियल लगा देना, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना. इस पूरे को 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं हम, है ना. सी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ 4 फैक्टोरियल. सो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं. सो 6 फैक्टोरियल इज ऑल्सो इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल. सो बहुत सारी वेज हैं सेम मीनिंग की चीज़ को लिखने की, है ना. इसकी भी अब आप वैल्यू इवेलुएट करेंगे तो क्या आएगी? 720. इसको भी देखिए आप सामने ही सॉल्व कर सकते हैं. 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आई थी? 24. 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24 एंड 6 5 इज 30. सो 30 इंटू 24 इज अगेन इक्वल टू 720. चलिए, अब अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो एक चैलेंज है मेरा, जिसका आंसर आ जाए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलें. ओके, क्या आप n फैक्टोरियल को और भी वेज में लिख सकते हैं? जैसे कि हमने n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिखा है, वैसे ही हम n फैक्टोरियल को क्या n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, या फिर इसको n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं. ट्राई इट आउट. ओके, and do tell me in the comment section. Now let's move on to the very important questions of factorial to brush up your skills and to brush up all your concepts regarding factorial. So this is your first tricky question. 10 factorial divided by 7 factorial into 3 factorial. अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? अलग अलग वेज हैं इसको सॉल्व करने की, बट यूटिलाइज द स्मार्ट वे. ओके, सी 10 फैक्टोरियल, हम पूरा 10 फैक्टोरियल नहीं निकालने बैठ जाएंगे कि 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 एंड टिल 3 to 1. हम वहाँ तक इसे मल्टीप्लाई नहीं करने जा रहे हैं, है ना. और 7 फैक्टोरियल को हम इवेलुएट नहीं करेंगे और 3 फैक्टोरियल को भी नहीं ऐसे डायरेक्टली करेंगे. सबसे पहले देखिए हम क्या देखेंगे बेटा, 10 फैक्टोरियल को हम एक्सपैंड करना स्टार्ट करते हैं. 10 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7. जैसे ही मिल गया 7 और 7 है नीचे भी, हम यहाँ पे पॉज कर जाएंगे. क्यों? देखिए तो ज़रा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये किसकी वैल्यू है? ये तो 7 फैक्टोरियल की वैल्यू है ना. 7 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. सो यहाँ तक हम बस लिखेंगे और हम इसको 7 के आगे नहीं लिखेंगे. हम यहाँ पे क्या
क्या लिख देंगे, इसको 7 फैक्टोरियल लिख देंगे ना, शॉर्ट वे है लिखने की। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को हम क्या सिंपली लिख सकते हैं, 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और हमने ऐसा क्यों करा, हम 7 ही पे क्यों रखे, हम यहाँ पे सिंपली 8 फैक्टोरियल क्यों नहीं लिखा हमने, क्योंकि 8 फैक्टोरियल हमें नीचे डिनोमिनेटर में नहीं मिल रहा है। डिनोमिनेटर में क्या है, 7 फैक्टोरियल है। सबसे बिगेस्ट फैक्टोरियल डिनोमिनेटर का क्या है, 7 फैक्टोरियल है। सो हम यहाँ पे 7 पे पॉज हो गए और आगे का हमने एक्सपैंड करके नहीं लिखा, बिकॉज हमें पता है कि 7 फैक्टोरियल की वैल्यू और आगे जो हम एक्सपैंड करके लिखते हैं वो वही वैल्यू है 7 फैक्टोरियल की। और डिनोमिनेटर में भी हमें 7 फैक्टोरियल मिल रहा है। सो यहाँ पे देखिए 7 फैक्टोरियल हमारा कैंसिल आउट हो गया, बिकॉज 7 फैक्टोरियल की वैल्यू है सिंपली 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। सो ये हो गया हमारा कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे अब हम 3 फैक्टोरियल को एक्सपैंड कर लेते हैं और जो हमारे टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं हमारे कैंसिल आउट करेंगे, फिर फाइनली हम अपना मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड करेंगे। सो दिस इज द न्यूमरेटर इज इक्वल टू 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 फैक्टोरियल इज 3 इंटू 2 इंटू 1. So now see the complex question, the question that seemed to be so complex got simplified. So this is your answer. 5 8s are 40 and 43s are 120. Okay, so I hope you understood this question, and now try out this question on your own and do tell me the answer in the comment section. Now the second tricky question. अब यहाँ पे आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। ओके, सो n+1 फैक्टोरियल की वैल्यू पहले तो आपको सोचनी है, उसके बाद हम यहाँ पे न्यूमरेटर में पुट करेंगे वो वैल्यू एंड देन हमारा ये सिंप्लीफाई होगा क्वेश्चन। सो n+1 फैक्टोरियल इज ओके। सो आपको बेटा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने माइंड में ये डेफिनेशन रखनी है कि n फैक्टोरियल की वैल्यू में हम लोग क्या करते हैं। हम सिंपली जिस भी चीज़ का फैक्टोरियल होता है हम सबसे पहले उसी चीज़ को पुट करते हैं ना। n फैक्टोरियल था तो n इंटू n-1 करते थे, n-2 करते थे, है ना। तो यहाँ पे देखिए किस टर्म का आपको फैक्टोरियल निकालना है। यहाँ पे आपको n+1 का फैक्टोरियल निकालना है। किसका फैक्टोरियल निकालना है, n+1 का फैक्टोरियल निकालना है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। फिर सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, n+1-1। फिर उसके बाद थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, n+1-2। क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे n था और यहाँ पे n की प्लेस में क्या आ गया है, n+1 आ गया है। तो बस आपको इस फॉर्मूले में n की जगह पे अब क्या पुट करना है, n+1 पुट करना है और आप वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो दिस इज़ सो सिंपल। सो n+1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, फर्स्ट टर्म यहाँ पे n+1 हो जाएगा क्योंकि हम n+1 का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं। फिर देखिए जिस भी चीज़ का फैक्टोरियल निकालते हैं उसमें -1 करते हैं, फिर उसके बाद हम उसी चीज़ में -2 करते हैं और उसके बाद फिर हम उसी चीज़ में -3 करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे वो नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ दिख रहा है डिनोमिनेटर में। अभी देखिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे n फैक्टोरियल, इसको हम अभी ओपन नहीं करेंगे। सो वी हैव n+1 इंटू n+1 -1 is n. Now 1 - 2 is -1, so we got n-1 into 3 into 2 into 1. अब हम इतने सारे टर्म्स तो नहीं लिखेंगे ना, सो सिंपली डॉट्स बना देंगे और लास्ट में 3 into 2 into 1 लिख देंगे और डिनोमिनेटर में क्या है, n फैक्टोरियल है। अब आप ध्यान से अपने न्यूमरेटर को देखिए और इसे डिनोमिनेटर से मैच करिए। सो न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिए n into n-1 into and so on 3 into 2 into 1, ये किसकी वैल्यू दिख गई, n इंटू n-1, ये सब किसकी वैल्यू दिख गई, ये तो n फैक्टोरियल की वैल्यू है ना। n फैक्टोरियल ही तो था, n इंटू n-1 इंटू n-2 एंड सो ऑन टिल 3 इंटू 2 इंटू 1। सो इसकी प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं बेटा, n फैक्टोरियल पुट कर सकते हैं। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये किसकी वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ n फैक्टोरियल। सो इस वे में आपका क्वेश्चन ये कितना सिंप्लीफाई हो गया और दिस इज़ योर सिंप्लीफाइड आंसर इक्वल टू n+1। ओके, सो देखिए बेटा जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया था एंड ये जो सेकंड क्वेश्चन है इससे हम लोगों को कुछ हिंट मिलता है ना, कोई एक सिंपल रूल है, कोई एक सिंपल सी ट्रिक है जो हमें मिल रही है। और वो क्या ट्रिक है, वो ये ट्रिक है बेटा कि जब भी किसी भी फैक्टोरियल को हमें सिंप्लीफाई करना है, एक फैक्टोरियल बहुत सारे हैं न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में, सो हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले जो सबसे बड़े नंबर का फैक्टोरियल है हमें उसी को सिर्फ एक्सपैंड करना होता है। किसे एक्सपैंड करना होता है,
जो सबसे बड़े नंबर का फैक्टोरियल है उसे हम पहले एक्सपैंड करते हैं। सो ये आप अपने नोट्स में बेटा लिख लिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। कोई भी फ्रैक्शन वाला टर्म है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी आपके फैक्टोरियल्स हैं, तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चेक करते हैं सबसे बड़े नंबर का फैक्टोरियल जो होता है उसी को हम सिर्फ और सिर्फ एक्सपैंड करेंगे और वहीं से हमारा आंसर हमें सॉर्ट आउट हो जाएगा। सो दिस इज़ योर ट्रिक कि फर्स्ट वी एक्सपैंड द फैक्टोरियल ऑफ लार्जर नंबर। ओके, वो नंबर जो कि बड़ा होगा सबसे, उसका हम लोग फैक्टोरियल सबसे पहले एक्सपैंड करेंगे और फिर हमको मिल जाएगा कि उसी के फैक्टोरियल में और जो फैक्टोरियल्स हैं वो आते होंगे। सो वो हमारे सिंपली कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया था, उस केस में 7 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया था। तो इसीलिए हमें पहले छोटे नंबर्स के फैक्टोरियल्स को एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट स्टेप इज़ कि हम एक्सपैंड करें लार्जर नंबर के फैक्टोरियल को। जैसे कि यहाँ पे n+1 और n में से कौन सा नंबर बड़ा था? ऑब्वियसली n+1 जो है ये बड़ा होगा, है ना। कोई भी आप वैल्यू n को दे के देख लिए, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो कि n को आप 3 दे दिए, सो ये 3 फैक्टोरियल है और ये क्या है 3+1 4 फैक्टोरियल। सो हम पहले बड़े फैक्टोरियल को एक्सपैंड करेंगे और फिर उसके बाद उसी में हमें छोटे फैक्टोरियल्स मिल जाएंगे एंड दे विल सिंपली गेट कैंसल्ड आउट एंड हमारा आंसर सिंप्लीफाई हो जाएगा। Okay, so question A and question B is for you. Try it on your own and tell me the answer in the comment section. That is all for today. And if you like my video, then do subscribe my channel and share it with your friends as well. Thank you. Have a bright day ahead.